We are going to discuss about heat transfer mechanisms, that how heat is being transferred from one object to another object. In this case, let's first see why there is a need for the heat transfer. As we know that thermal energy is transferred from whenever there is a difference between the temperature. One object is at higher temperature and the other object is at low temperature, or we can say that one object is warmer and the other object is cooler. Now let's take an example that we took a saucepan and we have filled that saucepan with water, and we have placed that saucepan over saucepan and water. Both saucepan is a solid and water saucepan is a solid object, and water we have filled it with the pan with it is a liquid or is a fluid. Now in order if now we want to, our purpose is to boil that water. In order to boil that water, we will place our saucepan over the heat, over the burner, and burner or stove basically is a hot object, and saucepan in this case is a cool object, or an object with a low temperature. Now if now the when both these objects, the stove which is at a higher which is warmer, and the pan which is colder or at low temperature, when both these come in contact, there might be a transfer of heat from the hotter object or high temperature reservoir to the low temperature reservoir, or the colder object. And we will observe that the pan, which is a solid, will become hot and we can check it by touching the outer boundary of the pan. And we have also observed that the water inside the pan, or any object, any liquid or any fluid which we have filled inside, after passage of some time, that fluid will become hot. Now what happened basically over here? Basically heat is transferred, and we have done a few of our observations previously. First observation was that heat is a form of energy, and the form of energy can be transferred from one place to another. And whenever there is a difference in the energy, in this specific case, the temperature difference, if the two objects are having a temperature difference, one is at a higher temperature and the other is at a lower temperature, both these objects will transfer energy from one object to another object. Two objects are let's say if two objects are in thermal equilibrium, हमारे पास हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कब नहीं होती? फॉर दैट केस वी कैन से इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड both objects are in thermal equilibrium, then there will be no net transfer in the एनर्जी, थर्मल एनर्जी हमारे पास एक पीरियड। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो गया तो कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर प्लेस। नाउ लेट्स रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. What was thermal equilibrium? So in order to revise thermal equilibrium, let's say we have two objects. First object is named as, let's say we have named our first object as A and the second object as B. Let's say body or the object A is at higher temperature as compared to body B. Now when both A and B are in thermal contact, some of the temperature, as their system is isolated from the surrounding, there is no heat entering or leaving the system. Whole system या whole arrangement, the whole arrangement of both these two objects A and B. तो अगर कोई थर्मल एक हमारे पास आउटसाइड से कोई थर्मल एनर्जी एंटर नहीं हो रही सिस्टम के अंदर, और सिस्टम ऑब्जेक्ट ए या बॉडी ए को हमने बॉडी बी के साथ इन कांटेक्ट में रखा है, तो बॉडी ए is warmer and body B is cooler, so body A will definitely lose some heat, and this loss of heat is absorbed by body B in order to attain the same temperature. When both the objects have same temperature, then the both objects will be at thermal equilibrium. And then now
लेट्स से कि हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट ए था उसका टेम्परेचर कम हो गया, बॉडी ए का टेम्परेचर कम हो गया और बॉडी बी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया। अगर बॉडी ए का टेम्परेचर कम हो गया और बॉडी बी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, सिंस दिस इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, हमारे पास सिस्टम से कोई भी टेम्परेचर बाहर नहीं जा रहा, अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम भी हो गया, लेट्स से कि हमारा ए का टेम्परेचर कम भी हो गया कंपैरेटिव टू बी, देयर इज़ नो अदर वे कि हीट एनर्जी यहाँ से कहीं बाहर जा सके। तो हीट एनर्जी क्या करेगी, विद इन दीज टू सिस्टम्स, दीज टू बॉडीज़ ही मूव करती रहेगी, दैट माइट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, जब ए गर्म था और बी ठंडा था तो हीट जो थी वो ए से बी की तरफ गई थी। अब बी जो है वो हॉटर हो गया है एंड ए बिकम वार्मर और ए बिकम कूलर, तो अब हीट एनर्जी विल ट्रांसफ़र फ्रॉम बी टू A and the cycle goes on until unless the cycle is disturbed। और अगर ये हमारे पास साइकिल कंटिन्यू रहता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो सिस्टम है दैट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हम ये बात कर सकते हैं कि हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें तो हमारे पास ए जो था पहले, फॉर द फर्स्ट स्टेप ए वॉज हायर ऑब्जेक्ट रीजन विद द हायर टेम्परेचर एंड बी वॉज रीजन विद द लोअर टेम्परेचर, और टेम्परेचर कहाँ हमारी हीट एनर्जी जो है वो ए से बी की तरफ गई थी। एंड फॉर सेकेंड स्टेप जब हमने कहा था कि बी इज़ द बॉडी विच इज़ वार्मर एज़ कम्पेयर टू ए, तो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर का रीजन था और ए जो है वो हमारे पास लो टेम्परेचर का रीजन था, तो हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर के रीजन से लो टेम्परेचर के रीजन की तरफ गई थी। तो दिस इज़ द डिडक्शन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटेशन दैट कि हमारे पास व्हेन एवर देयर इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम तो हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। अच्छा जी, जो हमने अभी बात की कि हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। अच्छा, हमने जब डिस्कशन स्टार्ट की थी, जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, तब हमने बात की थी कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम बेसिकली इज़ अ पॉइंट वेयर द टेम्परेचर, pressure, volume, amount of the substance for one object, the numerical value of these parameters for one object becomes equal to the numerical value of the second object। ऐसी बात की थी। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर हमारे पास एक रीजन हायर है और एक रीजन लोअर है और आफ्टर हमारे पास क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ हायर रीजन टू द टेम्परेचर ऑफ टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, तो हमारे पास बेसिकली वी आर गोइंग टू अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब दोनों टेम्परेचर्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे, एट दैट टाइम both our objects will be at thermal equilibrium, they both will have the same temperature। लेकिन जब तक वो सेम टेम्परेचर अचीव नहीं करते तब तक हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ इन थर्मल इन इक्विलिब्रियम। दैट से थर्मल इन इक्विलिब्रियम को हम अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वी विल डिफ़ाइन इट एज इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इट मीन्स दैट टेम्परेचर्स आर नॉट सेम। डेफिनेटली दिस इज़ द डायग्राम फॉर ये थर्मल इक्विलिब्रियम कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट हॉटर है और एक ऑब्जेक्ट कोल्डर है तो दिस इज़ थर्मल इन इक्विलिब्रियम। लेकिन क्या होगा आपके पास अगर both the objects are at the same temperature, this is at T1 and let's say इसका temperature भी हमारे पास T1 है, तो then our both the objects are in thermal equilibrium। लेकिन before that जब तक फर्स्ट ऑब्जेक्ट हॉट है और सेकेंड ऑब्जेक्ट आपके पास कोल्ड है तो ये सिस्टम आपके पास इन थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड? For that, let's say we have three basic physical mechanisms जिनकी बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। First one is conduction, second one is convection, and the third one is radiation. Today we are going to discuss basic two mechanisms, conduction and convection. We will discuss convention afterwards. तो ये एक डायग्राम हमारे पास दिखाई गई है जिसके अंदर हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को दिखाया गया है।
अच्छा जी, अब कंडक्शन क्या होती है, लेट्स से यही वो हमारे पास एक डायग्राम, अभी वही जो हमने स्टार्ट में अपने पास एक डायग्राम देखी थी जिसमें हमने कहा था कि हम हॉट सॉस पैन के अंदर किसी फ्लूइड को बॉईल करना चाह रहे हैं, तो हम उस सॉस पैन के अंदर के फ्लूइड को किस तरह से बॉईल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये डायग्राम हमारे पास बेसिकली है, और ये डायग्राम हमें क्या दिखा रही है, ये डायग्राम हमें बता रही है कि अगर मैं अपने पैन के हैंडल को पकड़ती हूँ तो जो हीट मैं फील कर रही हूँ दैट हीट इज़ फेल्ट थ्रू कंडक्शन, और ये जो लिक्विड या फ्लूइड बॉयल कर रहा है मेरे पास, दैट लिक्विड इज़ बॉइलिंग बेसिकली बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, और जो पैन तक हीट जा रही है फ्रॉम द स्टोव, दैट हीट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू रेडिएशन। तो ये बेसिकली 3 मैकेनिज़म्स हैं, जिन 3 मैकेनिज़म्स की बेसिस पर हमारे पास फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। इन तीनों मैकेनिज़म्स की बेसिस पे हमारे पास हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। लेट्स से फर्स्ट मेथड ऑफ कंडक्शन, फर्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दैट इज़ कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन क्या है कि हमारे पास कन्वेक्शन को यहाँ डिफ़ाइन भी किया गया है कि एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कहीं पर हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली वी आर बेसिकली अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वी आर राइजिंग द हीट एनर्जी, और अगर हम हीट एनर्जी राइज कर रहे हैं किसी सिस्टम की, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, ये मॉलिक्यूल्स विल बिकम हाईली एनर्जेटिक, और ये हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, और ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय द मास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज योर कन्वेक्शन। लेट्स स्टडी कन्वेक्शन इन डिटेल, लेकिन कन्वेक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले लेट्स सी कि हमारे पास कन्वेक्शन पॉसिबली कहाँ कहाँ हो सकती है। तो वो कहता है कि लिक्विड गेट हीटेड अप बाय कन्वेक्शन, हम कन्वेक्शन के थ्रू अपने लिक्विड्स को हीट अप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे लिक्विड्स के लिए। वी विल बी स्टडिंग एन एप्लीकेशन, और जिसके अंदर हम लोग अपने लिक्विड्स के साथ साथ अपनी गैसेस या फिर हम एयर के अंदर भी कन्वेक्शन प्रोसेस को स्टडी करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड को हम लोग हीट अप करते हैं, तो जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनसाइड द लिक्विड, उस मोशन को हम लोग कन्वेक्शन मोशन, बेसिकली व्हेन एवर देयर इज़ अ मोशन, तो उस मोशन को हम लोग करंट कहते हैं, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या उस मोशन ऑफ चार्जेस को हम लोग करंट कहते हैं। और यहाँ पर अगर हमारे पास हम हीट को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं इनसाइड द लिक्विड, तो हमारे पास यहाँ पर जो मोशन है उसको हम कन्वेक्शन करंट कह देंगे, मॉलिक्यूल्स की मोशन, दैट विल बी कन्वेक्शन करंट। तो हमारे पास जब भी लिक्विड्स हीट अप होते हैं तो वो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हीट अप होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से हीट अप। अच्छा जी, नाउ लेट्स से कि हमारे पास सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ही, हम अगर सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जो सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी, दैट मैकेनिज़्म विल बी बेसिकली नोन एज कंडक्शन ऑफ द हीट मॉलिक्यूल्स, और कंडक्शन ऑफ द हीट इनसाइड द सॉलिड्स हमारे पास होगी। अब सॉलिड के अंदर हम लोगों को मालूम है कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, तो मॉलिक्यूल्स इंटायरली मूव नहीं करेंगे, बल्कि मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट, और वाइब्रेशन ऑफ द मोशन की वजह से अबाउट द फिक्स पोजीशन मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा उसको हम कंडक्शन का नाम देंगे। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट मैकेनिज़्म इज़ रेडिएशन, कि हाउ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अकर विद फ्रॉम इनसाइड वैक्यूम। अगर वैक्यूम में हम हीट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, और लेट्स से कि हम लोग जो है अपने पास सूरज से जो ज़मीन पर हीट पहुंचती है, दैट हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशंस टू द अर्थ। नाउ गोइंग टूवर्ड्स द डिटेल ऑफ द कन्वेक्शन, व्हाट इज़ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन हमने कह दिया कि इज़ द मोशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन द liquid or the fluid, और fluid क्या है, बेसिकली वी कैन से एनीथिंग दैट इज़ फ्लोइंग इज़ द fluid, और फ्लूइड के अंदर हमारे पास हीट ट्रांसफ़र डेफिनेटली होती है बाय द करंट्स विद इन द फ्लूइड और द गैस। लिक्विड कह दें या फिर आप गैस कह दें, बोथ आर द सेम, बोथ can heat is transferred inside both of them with the help of convection,
और कन्वेक्शन के साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं, कन्वेक्शन के एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम बनाई हुई है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये एक बंसन बर्नर है और एक हमारे पास बीकर है। उस बीकर के अंदर हमने कोई भी फ्लूइड फिल किया हुआ है, और ये जो फ्लूइड है हमने फिल किया हुआ है। इस फ्लूइड को फिल करने के बाद हमने क्या किया है, लेट्स से कि हमारे पास नीचे वाला रीजन जो है, इस नीचे वाले रीजन के अंदर टेम्परेचर ये क्योंकि बर्नर के पास है तो इस रीजन के मॉलिक्यूल्स जल्दी हीट अप होंगे, और जब ये मॉलिक्यूल्स हीट अप होंगे दैट विल मीन कि हमारे जो मॉलिक्यूल लिक्विड है यहाँ पर, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो गए, और जब ये एनर्जेटिक होंगे तो ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, और जब ये एक दूसरे का स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के बाद ये एक दूसरे को अवे मूव करेंगे, और जब ये एक दूसरे को अवे पुश करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इस रीजन लोअर रीजन के अंदर हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी। ये एक वार्मर लिक्विड का रीजन बन गया हमारे पास, और इस वार्मर रीजन के अंदर मॉलिक्यूल्स, हमारे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम है। क्यों डेंसिटी कम है? डेंसिटी बेसिकली क्या थी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अवे पुश कर रहे हैं तो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कम होगी, और हमारे पास नीचे डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर नीचे डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी और ऊपर हमारे पास हायर डेंसिटी है, मॉलिक्यूल्स विल मूव टू द रीजन ऑफ हायर डेंसिटी। और जब ये हायर डेंसिटी के रीजन की तरफ जाएंगे तो जो हायर डेंसिटी वाले रीजन के मॉलिक्यूल्स थे दे विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स द रीजन ऑफ द लोअर डेंसिटी। सॉरी, ऊपर से मॉलिक्यूल्स ने नीचे की तरफ आना है। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कोल्डर रीजन विल कम टूवर्ड्स द मॉलिक्यूल्स एट द हायर रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम है। तो जब डेंसिटी कम है तो हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स की मोशन हो रही है, एंड दिस मोशन इज़ नोन एज करंट। तो बेसिकली वी कैन से इन द कन्वेक्शन हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर मूविंग ड्यू टू द करंट। अच्छा जी, in order to demonstrate the convection in the liquids, let's say we have taken a flask, a Bunsen burner, a tripod stand, and flask is filled with the water. और हमने इसके अंदर क्या किया, पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ क्रिस्टल्स डालें। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट बेसिकली क्या है, इट्स इंडिकेटर, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर आप लोगों ने मालूम होगा, आप लोगों को पता है कि इंडिकेटर क्या होता है। यूजुअली वी यूज़ द इंडिकेटर्स इन द केमिकल प्रोसेस इन ऑर्डर टू एनालाइज के व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द एक्सपेरिमेंट। तो जब हम लोगों ने पोटेशियम पर मैग्नेट को डाला, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट के, और हीट को ऑन कर दिया, जब हमने अपने फ्लास्क को हीट किया तो पर्पल स्ट्राइक्स ऑफ वाटर, पानी पहले तो क्या होगा, नीचे बॉटम पर हमारे पास ये आपको पर्पल कलर नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली योर पोटेशियम पर मैग्नेट। लेकिन जैसे ही हमारे पास हीट बढ़ती है तो पर्पल कलर की लेयर्स, पर्पल आपको प्रॉपर स्ट्रीम्स नज़र आएंगी, पर्पल कलर की मूव करती हुई स्ट्रिंग्स नज़र आएंगी इस बीकर के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर। और क्या होगा आपके पास, बेसिकली वो हो क्या रहा है, जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो हॉट मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो कोल्डर मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, हमारे पास जो वाटर है वो यूनिफॉर्मली पर्पलिश हो जाएगा। यूनिफॉर्मली पर्पलिश होने का मतलब क्या है, हमारे पास पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर पूरे के पूरे लिक्विड जो है हमारा, इस सारे लिक्विड के अंदर हमारे पास एक जैसा टेम्परेचर हो चुका है, और पूरे का पूरा लिक्विड जो है अब कुछ वार्म हो गया। ठीक है जी, तो वी कैन से कि हमारे पास द सर्कुलेशन ऑफ द लिक्विड इन दिस मैटर इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें यहाँ से ये नज़र भी आया कि किस तरह से हमारे पास लिक्विड जो है वो हीट अप होता है। और कन्वेक्शन इन द लिक्विड्स अगर हम देखना चाह रहे हैं तो लेट्स से कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल, पर्पल जो रीजन है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रीजन ऑफ higher temperature and the red is representing the region of lower temperature। तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास, सॉरी इट्स ऑपोजिट, हाई टेम्परेचर रीजन ऊपर है और लो टेम्परेचर रीजन हमारे पास नीचे। तो हाई टेम्परेचर रीजन से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं टू इनसाइड द लो टेम्परेचर रीजन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है कन्वेक्शन इन गैसेस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कन्वेक्शन इन गैसेस, लेट्स से कि हमारे पास क्या है, एक अदद गैस चैम्बर है।
ठीक है जी। और ये वर्टिकल गैस चैम्बर है। इस वर्टिकल गैस चैम्बर के अंदर हमने एक स्पेस रखी हुई है, एक कॉलम बनाया हुआ है जिसके अंदर से हमारे पास क्या आ रही है, कूल एयर एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर। और हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक अदद रीजन रखा हुआ है जिसके ऊपर हम लोगों ने वार्म, जिसको हमने यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, हीट का सोर्स, ठीक है जी। और इस हीट सोर्स के पास जब हमारे पास बेसिकली क्या होगा, कोल्ड एयर हीट सोर्स के पास पहुँचेगी तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और जब डेंसिटी चेंज होगी तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कन्वेक्शन, यहाँ पर कोल्डर एयर इस रीजन से एंटर हो रही है, और वाई कन्वेक्शन इस रीजन पर हम लोगों के पास क्या हमें मिल रही है, हमें हॉट एयर मिल रही है। और ये जो हॉट एयर हमें मिल रही है, इस एयर को हम लोग चिमनी से बाहर निकाल रहे हैं फॉर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रही है, यानी कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मैस मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हो रही है, जिसके नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो, जिसके नतीजे में हमारे पास बेसिकली वी कैन से हीट इज़ ट्रांसफर्ड। नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, या हमारे पास व्हाट आर द कन्वेक्शंस, कन्वेक्शन करंट के लिए हम इन एयर्स हमारे पास किस तरह से कन्वेक्शन हम लोग करते हैं। फॉर दैट हमने क्या किया हुआ है, हमने एक अदद रूम एज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास रूम है, और इस रूम के अंदर हमने एक फायर प्लेस है हमारे पास, ठीक है जी। और फायर प्लेस के साथ हमारे पास क्या है, एक अदद विंडो लगी हुई है, और इस तरफ हमने एक अदद दरवाज़ा रखा हुआ है। आपकी किताब, आपके पास जो नोट्स हैं उसके अंदर जो आपके पास डायग्राम है, उस डायग्राम में यहाँ पे विंडो नहीं है, बट एक अदद हीटर मेंशन्ड है और एक अदद सोर्स फॉर द कोल्ड एयर मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है, अब यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कोल्ड एयर एंटर हो रही है फ्रॉम द डोर, और ये कूल्ड एयर जो है हमारे पास फायर प्लेस के पास आ रही है, फायर प्लेस के पास आ रही है वार्मर रीजन के पास, और यहाँ वार्मर रीजन के पास से होती हुई ये बेसिकली उस तरफ भी आपके पास कुछ इनलेट्स नज़र आ रहे हैं आपको। इन तमाम इनलेट्स में से आपके पास ऑप्शन है कोल्ड एयर के एंटर होने को। आप ये बेसिकली इनलेट्स आपके पास एक अदद लो टेम्परेचर रीजन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास वो कोल्ड एयर एंटर हुई दरवाज़े से, वार्मर एयर के पास पहुँची, और वार्मर एयर के पास पहुँचने के बाद ये ऊपर लो टेम्परेचर रीजन्स की तरफ मूव कर रही है। तो और आपके पास अब इस रीजन के अंदर, लेट सपोज़ इस रीजन के अंदर जो हीट एयर, जो एयर मौजूद होगी, ये एयर जो है आपके पास, दैट एयर विल बी वार्म एयर। तो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि आपके पास किस तरह से हम लोग अपनी बिल्डिंग्स के अंदर अगर टेम्परेचर को हाई रखना चाहते हैं तो हम अपने टेम्परेचर को किस तरह से हाई रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। now let's see, there are few applications for the convection, in that case first one is the sea breeze and the land breeze। हमारे पास सी ब्रीज के अंदर क्या होता है, सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। कि हमारे पास क्या है, लेट्स एज्यूम वी हैव अ सनी डे, और इस सनी डे के ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो सूरज से आ रही है, एंड दैट लैंड्स फास्टर, सूरज जो है हमारे पास वो हमारी ज़मीन को ज़्यादा जल्दी गर्म करता है एज़ कंपेयर टू द सी। और हमारे पास जो ज़मीन के ऊपर हीट है वो ज़्यादा जल्दी हीट अप होगी, और हीट अप होने के बाद वो एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड करेगी बेसिकली ये आपके पास लैंड दिखाई गई है, और लैंड के ऊपर जो रीजन, लैंड के ऊपर सूरज से आने वाली रेडिएशंस की वजह से जो हीट है वो ज़्यादा है, और हीट के वजह से इस रीजन के ऊपर जो एयर थी वो जल्दी हीट अप हो जाएगी, और जब वो जल्दी हीट अप होगी तो वो क्या करेगी, वो मूव करेगी टूवर्ड्स द रीजन ऑफ द कोल्डर लेसर टेम्परेचर। और लेसर टेम्परेचर का रीजन कौन सा था हमारे पास, ये समंदर था। इस समंदर के ऊपर जो हवाएं हैं वो ठंडी होंगी, तो क्या होगा, आपके पास वार्मर एयर विल स्टार्ट एक्सपैंड एंड राइजेस टूवर्ड्स द रीजन्स ऑफ द लो टेम्परेचर। और जो लो टेम्परेचर रीजन है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास समंदर है।
तो समंदर से अब, और समंदर पर क्या थी, आपके पास कोल्ड एयर्स थी, कोल्ड एयर्स थी। ये कोल्ड एयर्स क्या करेंगी, दे विल मूव टूवर्ड्स द रीजन्स ऑफ द हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर रीजन कौन सा, आपके पास ज़मीन है। तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली आपके पास पानी की तरफ से, समंदर की तरफ से ठंडी हवा आएगी। यूजुअली हम इट इज़ ऑब्जर्व व्हेन एवर यू आर स्टैंडिंग ऑन एट द रिवर बैंक, तो हम लोगों के पास क्या होता है, पानी की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही होती हैं। तो सी ब्रीज़ बेसिकली क्यों ठंडी होती है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ लेसर, और टेम्परेचर ऑफ वाटर लेसर है अगर, तो इसका मतलब है हमारे पास सी ब्रीज़ के ऊपर, सी ब्रीज़ जो है वो ठंडी आएंगी, पानी की तरफ से आने वाली हवाएं जो हैं वो ठंडी होंगी। नेक्स्ट आपके पास है लैंड ब्रीज़। अब रात को अगर हम देखें तो लेट्स सपोज़ कि रात में हमारे पास ज़मीन का सूरज से आने वाली रेडिएशंस नहीं होती, कम होती हैं, सूरज से आने वाली रेडिएशंस कम होती हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ज़मीन जो है वो ठंडी है। लैंड लूजेस टेम्परेचर फास्टर एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हमारे पास पानी जो है, जो पानी है वो गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू अर्थ, और एज़ कम्पेयर टू अर्थ अगर पानी ठंडा है तो हमारे पास ठंडे पानी एज़ कम्पेयर टू वाटर हमारे पास अर्थ ठंडी है। एट नाइट बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास हीट जो है वो टेम्परेचर वाटर एयर एट द सी इज़ लेस डेंस, क्योंकि वो हॉट एयर है, और अगर हॉट एयर है वो लेस डेंस है, तो दैट विल मूव टूवर्ड्स द रीजन ऑफ द दैट विल एक्सपैंड ईजीली। और अगर ये एक्सपैंड करेंगी तो ये हमारे पास कहाँ आएंगी, ये टूवर्ड्स द रीजन्स ऑफ द कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के रीजन की तरफ मूव करेंगी। यानी कि ये समंदर से आने वाली हवाएं अब मूव करेंगी टूवर्ड्स लैंड, और लैंड चूँकि टेम्परेचर कम रखती थी, तो जो लैंड से हवाएं थी वो मूव करेंगी टूवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर, एक हायर टेम्परेचर समंदर की तरफ जाएंगी। और जब ये समंदर की तरफ जाएंगी तो यहाँ पर हमारे पास जो ज़मीन से आने वाली हवा है दैट विल बी कोल्डर एज़ कम्पेयर टू द सन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लैंड ब्रीज, वी आर ऑब्टेनिंग लैंड ब्रीजेस। और लैंड ब्रीज क्या है, लैंड ब्रीज हमारे पास ज़मीन से आने वाली हवा है जो कि ठंडी है एज़ कम्पेयर्ड टू द एयर कमिंग फ्रॉम द सी। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट एप्लीकेशन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के लिए। इसको समझाने के लिए आप ये डेफिनेशन डायग्राम डेफिनेटली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, जिसमें हम लोग एयर के लिए, जिसको हम लोग ग्लाइडिंग कह रहे हैं। अब ये ग्लाइडिंग क्या है, बेसिकली हम इसमें ग्लाइडिंग में आपको एक ग्लाइडर नज़र आ रहा है। हम आम तौर पर जब हम छोटे होते हैं तो पेपर प्लेन्स बनाते हैं, दे पेपर प्लेन्स और ऑल्सो ग्लाइडर्स। जिन पेपर प्लेन्स या ग्लाइडर्स में हम लोगों के पास बेसिकली क्या होता है, वी आर प्रोवाइडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हम यूज़ करते हैं ग्लाइडर की मूवमेंट के लिए। और ग्लाइडर जो है वो जब मूव करता है, बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, बेसिकली इट माइट बी एन एनर्जी जो कि आपके पास हॉटर रीजन से आ रही होती है। और लेट्स से कि हम लोग ज़मीन पर खड़े हुए हैं, अक्सर आपने ये देखा होगा, पैराग्लाइडिंग का टर्म आपने सुनी होगी। और पैराग्लाइडिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक इंसान, उसने इसी तरह से ग्लाइडर पकड़ा होता है, और वो क्या करता है, वो हाइट से फ्लाई करता है, हाइट से वो जंप करता है। जब वो हाइट से जंप करता है तो बेसिकली वहाँ हो क्या रहा है, हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जंप करते हैं तो जंप से हम लोग बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वो दिस एनर्जी is helping the rider and the glider both in order to ride over the air currents। जब भी हमारे पास ज़मीन जो है वो गर्म, डेफिनेटली हमारी ज़मीन गर्म है, तो ज़मीन से जो मिलने वाली हीट है वो जो एयर है, फॉर द डे टाइम्स हम बात कर रहे हैं, दैट एयर इज़ हॉट। और ये हॉट एयर जो है वो एक्सपैंड करेगी, और जब ये एक्सपैंड करेगी तो ये क्या करेगी, ये पुश प्रोवाइड करेगी इस ग्लाइडर को। और ये ग्लाइडर जब ऊपर दिस प्रोवाइडेड
push will help the glider to move forward. और जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा तो हमारे पास जो हॉट एयर है rises from the ground and lifts the hang glider in the air. और जब ये एयर में जाएगा तो ये कुछ देर तक मूव करता रहेगा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी. और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डेफिनेटली एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, और ये मूविंग मॉलिक्यूल्स जो हैं दैट विल हेल्प द हैंग ग्लाइडर टू मूव फॉरवर्ड. इसी तरह हमारे पास जो बर्ड्स हैं, most of the birds use the gliding technique in order to move and have a effortless flight.